हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा का डेली किस करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। ये डे 28 है। हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसी चैनल पे डे 27 तक पूरे वीडियोस डाले। आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। यूपीएससी परसिवरेंस करके ये मेरा चैनल है। आप इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। आज हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एज यूजुअल। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द मार्कंडेश्वर टेम्पल। मार्कंडेश्वर टेम्पल के बारे में पूछा है। 2 सेंटेंस दिए हैं। इट बिलोंग्स टू द श्वेतांबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैनगंगा। सो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। 2 सेंटेंस दिए थे आपको। सो सेकंड सेंटेंस करेक्ट है इसका। इट इज़ सिचुएटेड ऑन द वेस्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर वैनगंगा। और ये जैनिज्म से रिलेटेड नहीं है। मार्कंडेश्वर टेम्पल ये है खजुराहो ऑफ विदर्भा। इसको खजुराहो ऑफ विदर्भा भी बोलते हैं। यह अभी न्यूज़ में था। द टेम्पल ऑफ मार्कंडेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर वेंगंगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ गढ़चिरोली ऑफ महाराष्ट्र. द टेम्पल बिलोंग्स टू द नागरा ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया. ऑन stylistic ground on stylistics grounds, their date ranges in between 9 to 12th century. The temples belongs to the Shaiva, Vaishnava and Shakti faith. Sakta faith. Most of the temple have simple plan with Ardha Mandapa, Antarala, Garbhagriha forming component of the entire setup. So ये जैनिज्म से नहीं है, ये शैव वैष्णव एंड शक्ति से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड. इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश एज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर BIS एक्ट 2016. Second option है, the standards of and certification schemes. BIS supports various public policies areas and product safety, consumer protection, food safety, environment protection, building and construction etc. आपको सही आंसर बताना है, करेक्ट बताना है। सो इसका दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है। सो हम डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया है। BIS has been established as the national standard body of India under the BIS Act 2016. The main objective of the BIS is a harmonious development of the activities of standardization, marking and quality certification of goods. The standards and certification scheme of BIS, apart from the benefiting the consumers and industry, also support various public policies, especially in the areas of product safety, consumer protection, food safety, environment protection, building and construction etc. New new trust areas identified in the standardization are alternate fuel, e-mobility, medical device, smart cities, digital technology, industry 4.0, artificial intelligence, blockchain etc. New and renewable energy. Some of the important initiatives taken for the effective implementation of the BIS Act 2016. कुछ इनिशिएटिव लिए हैं BIS Act 2016 के तहत. Notification of the new BIS hallmarking regulation 2018. Under the act, the central government has also notified the gold jewelry and gold artifacts and silver jewelry and silver artifacts to be marked with the hallmark. BIS conformity assessment regulation 2018 has been notified under the act. The regulation provides for the multiple types of simplified conformity assessment scheme, including the self declaration of the conformity SDOC against any standard, which will give the multiple simplified option to manufacturers to adhere the standard and get certificate or conformity, thus improving the ease of doing business. Penal provision for the better and effective compliance and to enable compounding offences for the violation has been made stringent under the new regulation. Guidelines for the procedure to be followed by the line ministry for making the use of the mark under the license or certification of the conformity compulsory, and also procedure for the approving, authorizing any other agency for carrying out the conformity assessment activities under the section 16(1) of the BIS Act 2016. So ये PIB में दिया था आपको। ये मेंस में काम में आ सकता है। इतना जो दिया है, कुछ गाइडलाइंस वगैरह दिए हैं। कभी कभी पूछ सकते हैं कि BIS एक्ट्स की गाइडलाइंस क्या थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, पिंक बोलवर्म के बारे में है। प्राइमरीली अफेक्ट द विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स. सो ये कॉटन को अफेक्ट करता है. पिंक बोलवर्म इज एन इंसेक्ट नोन फॉर बीइंग अ पेस्ट इन कॉटन फार्मिंग. Pink bollworm is a native to Asia but has become an invasive species in most of the world cotton growing region. In parts of the India, the pink bollworm is now resistant to first generation transgenic BT cotton, Bollywood cotton जिसे बोलते हैं, that expresses a single BT gene, cry1 AC बोलते हैं. फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में दिया है. 2 सेंटेंस दिए हैं. इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. इट रिव्यूज मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट
फाइनेंसिंग मेजर्स टेकन बाय द कंट्रीज। स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दोनों सेंटेंस करेक्ट है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और रिव्यू करता है मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग मेजर टेकन बाय द कंट्री। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं हम। FATF is an intergovernmental body to examine and develop the measure to combat money laundering and terrorist financing other related threats to the integrity and international financial system. FATF reviews the money laundering and terrorist financing measures taken by the countries। वही ऑप्शन में दिया था, वही दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स BRI फॉर द इंडियन स्टेट एंड UT विल बी डेवलप बाय द को 4 ऑप्शन दिए। नीति आयोग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सो इसका करेक्ट स्टेटमेंट है 2 और 3। दो नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सही है, ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स से रिलेटेड है। सो डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम एंड इंडिया काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक relations sign MOU to develop a broadband readiness index for Indian states and UT. The National Digital Communication Policy NDCP 2018 acknowledge the need for building robust digital communication infrastructure leveraging existing asset for the broadcasting and power sector. So ये 5 क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए 1 by 1। कभी कभी क्या होता है कि मतलब ये क्वेश्चन और उसके आंसर पढ़ने से हमें मतलब क्विक रिवीजन हो जाता है और हमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न से अच्छा जब हम ऑनलाइन टेस्ट वगैरह देते हैं और हमें आंसर पता नहीं रहता है। सो इट अकॉर्डिंग टू मी इट्स टेक टू मच टाइम, बट अभी रिवीजन करना है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्वेश्चन और उनके आंसर 1 by 1 रीड कर रहे हैं। सो मैंने सुना था किसी टॉपर से कि ये भी एक अच्छा तरीका है कि हम आंसर्स देखकर भी मतलब सॉल्व मतलब 1 by 1 क्वेश्चन उसका रिवीजन कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम ऑनलाइन ही टेस्ट दें। इफ़ इट इज़ पॉसिबल यू कैन गिव इट। सो ये हमारा डेट 28 था और ऐसे ही हम यहाँ पे वीडियोस डालते जाएंगे। सो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।